Hello. Uh, Trigonometry, part 4. Yeah. This part, I've chosen to take up one special type of question. It's very different from others. Okay. What it has is its denominator, one of the sides. The denominator has three terms. What does it mean? पहले तो मतलब समझने कि कौन से टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे मैंने ये लिख रखा है क्वेश्चन, इसका आप डिनोमिनेटर देखो, एक टर्म ये कॉस, एक टर्म ये साइन और एक टर्म ये 1। ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस are available in the books. If you go through 10 books also, you'll find 7-8 total number of questions which are getting repeated again and again. Okay, so there are limited number of questions of this type to practice, and they have slightly different method of solving. We can't just depend on these methods. ठीक है, पहली बात तो क्या हो गई, the denominator should have 3 terms. Only then are we using this methodology. And I will not lie, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप यू हैव टू मेमोराइज कि ओके, इफ आई सी सच क्वेश्चंस आई हैव टू डू दिस। इट इज, आप फर्स्ट टाइम करोगे, एकदम से एग्जाम में करोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम नहीं कर पाए। हम एक वो छोटा सा पता ही होना चाहिए कि ये हमें करना है, and then there is no problem, then it flows on its own according to these methods. But yes, एक छोटी सी चीज़ हमें याद करनी पड़ती है। Okay? Okay. So let's start with this. I'll tell you the different thing that has to be added. I don't want to add it to this list because it is specifically for this question, this kind of question, 3 terms wala question. So I'll write that method here itself. Okay. Now, what is that small trick or small thing that you have to remember in such question? जिसमें नीचे 3 चीज़ें हैं, is look at, obviously difficult side तो ये है, ये तो हमें दिख ही रहा है. We have to observe the simple side also. This is the simple side. नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं ना सिंपल साइड को, इस तरह हमें थोड़ा सा देखना है, करना उसको नहीं है, देखना है उसको कि सिंपल साइड पे है क्या. सिंपल साइड पे है कोसेक, which means 1/sin. सिंपल साइड पे है cos/sin. मीन्स व्हाट वी ऑब्जर्व कि नीचे डिनोमिनेटर में साइन है, ये हमने इसकी सिंपल साइड से ऑब्जर्व किया. बस हमें यही ऑब्जर्व करना है. सिंपल साइड में विल राइट इन अ ब्रैकेट, डिनोमिनेटर हैज अ साइन टर्म, साइन थीटा. इससे हमें हिंट लेकर the step that we have to remember, if I call it A, if I call it something P, D, the denominator has sin theta. Okay, the step that we have to remember is divide the numerator and denominator of the difficult side. Difficult side तो हम चूज करते ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. जो हमने डिफिकल्ट साइड चूज की, ये वाली हमने साइड चूज की, उसको डिवाइड बाय, यू डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल डी. आई रिपीट, जो सिंपल साइड से उसका थोड़ा सा सॉल्व करके उसके देखो नीचे क्या आ रहा है. नीचे आ रहा था 1/sin cos/sin, मतलब उसके नीचे में आ रहा था sin. एक ही आएगा, या तो क्वेश्चन में cos आएगा या sin आएगा, एक ही चीज़ आती है, कभी मिक्सचर नहीं आता है. इसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर में नीचे sin आ रहा था. I named it small d. Just you want to remove confusion, you can call it x. डिनोमिनेटर जो आ रहा है, I'm calling it x.
So the thing we have to remember to do in such questions is, जो difficult side है उसका numerator and denominator you divide it by this x. That means here I will divide it by sine theta. This is one thing that I agree we have to learn in such type of question. We have to really learn it. We have to just know it, otherwise हम नहीं कर पाएंगे. It will be very difficult. We'll waste a lot of time and not worth it. थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी चीटिंग चलती है. ठीक है? Okay. So we have to divide this difficult side by sine theta. Decide हो गया? Okay. Now here also, even just doing that is not difficult, it's log, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें. So what I prefer to do, like I always tell you, I take only one thing at a time. I'm just solving the numerator first. I'm ignoring denominator, it's too much of a job. I'm just taking the numerator as of now. What is the numerator? Cos theta minus sine theta plus 1. And as I decided, I will divide all of it by sine theta. This is my first step that I told you I will have to remember. I took the numerator, that's for मेरे ease के लिए, मेरे comfort के लिए. I'm just solving the numerator first, and I have to, this is the step, divide each step by sine theta. Okay. How it helps is, now why am I doing this? Because the moment I do it, do I need causes and sines here? मुझे cos और sin चाहिए क्या? नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? cosec, cot. मुझे उस तरफ ultimately proof में चाहिए cot, cosec. So the moment I divide it by sine here, I start getting something at least like that. I get here a cot theta, I get here a 1, and I get, तो एटलीस्ट कुछ रिजेम्बलेंस तो आनी शुरू हुई. राइट हैंड साइड तो पहले तो साइन कॉस थे. रिमेंबर, इसमें मैं उल्टा कर रही हूँ. आई ऑलवेज से कि कोसेक वगैरह को साइन कॉस में चेंज करो, कॉट को साइन कॉस में चेंज करो. इस स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में आई एम सेइंग उल्टा करो, साइन कॉस को कोसेक कॉट में चेंज करो. पहली बार हम उल्टा काम कर रहे हैं. वी आर डूइंग ऑपोजिट ऑफ दिस. कन्वर्ट साइन कॉस को हम इग्नोर करके इसका उल्टा काम कर रहे हैं. हम कॉस साइन को कोसेक कॉट में चेंज कर रहे हैं. गुड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमें 1 नहीं चाहिए. देखो उधर हमें कॉट चाहिए सब फॉर्म में, कोसेक चाहिए कुछ फॉर्म में, बट हमें 1 नहीं चाहिए. तो फॉर अ चेंज हम इसमें एक और चीज तो हमें याद रखनी है. वी पुट the value of 1. ये क्या मतलब हुआ? put the value of 1. अगर हम ध्यान से देखें आइडेंटिटीज में, 1 की हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं. 1 कैन बी साइन स्क्वायर प्लस कॉट थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. 1 कैन बी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर. 1 कैन बी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. सो वी हैव वैल्यूज ऑफ 1 ऑल्सो. हमारे पास 1 की भी कोई ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू है बिसाइड्स द नंबर. तो व्हाट विल आई डू? आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 1. नाउ अब इसमें से कौन सी वाली चूज करोगे आप? 1 की एसेट की 3 वैल्यूज हमें पता है. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट. अब इसमें से कौन सी चूज करोगे? ऑब्वियस है, अगर क्वेश्चन कोसेक और कॉट का चल रहा है तो हम यहाँ वाली 1 की वैल्यू चूज करेंगे. ठीक है, तो मैंने 1 की वैल्यू चूज करी, एंड दिस बिकम्स कॉट थीटा माइनस 1 की वैल्यू डाल रही हूँ मैं वहाँ से. हाँ, आप ध्यान से देखना, मैं 1 की वैल्यू डाल रही हूँ वहाँ से, एंड बाकी मैंने एज इट इज, कि मैंने 1 की वैल्यू जब डाली तो देखो ये क्या हुआ, ये एज इट इज आ गया. ये 1 की जगह ये सब आया है, और कोसेक थीटा कोसेक थीटा
ये ऐसे बन गया। हमने इसको और बड़ा बना दिया है, ठीक है। हम पहली बार इसको और मुश्किल बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट है, अब सब मैकेनिकल हो जाएगा। ओके, नाउ दे विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। सिर्फ ये याद रखना था कि वहां से हमें साइन से। नाउ अब क्या कर सकते हो, तो खोल ही सकते हो, और क्या कर सकते हो, खोल दो। एक और उल्टी चीज करनी है इसमें, हर चीज उल्टी करनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन अ नॉर्मल थिंग हम क्या करते हैं, हम इसमें और इसमें से कॉट लेने की कोशिश करते हैं कॉमन, और इसमें से और इसमें से कोसेक कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, राइट। दैट इज वन ऑफ द मेथड्स। इसमें हम इस रूल को भी उल्टा यूज करेंगे। इसमें हमें कॉमन नहीं लेना है, डिफरेंट डिफरेंट पास पास चीजें रखनी है। क्या मतलब है, मतलब कॉट और कॉट स्क्वायर को पास पास नहीं रखना है, कॉट और कोसेक को पास रखना है। तो व्हाट आई डू, आई एम जस्ट रीशफलिंग इट। कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ उनकी जगह चेंज कर दी है। इसको इसके पास रख दिया और इसको इसके पास रख दिया। कोई साइन चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट shuffled their positions, doing the opposite of what I normally do. I take common, this time I have taken different. मैंने उनको अलग अलग चीज़ों को पास पास रख दिया। I put this in a bracket and I put this in a bracket. Okay, जब उनको पास पास रख दिया तो I'm trying to group them. I have made one group and I have made group. Remember, I'm just doing the numerator right now. Okay. So इसका तो कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसका क्या हो सकता है, कॉट स्क्वायर माइनस कोट सेक स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी हो सकता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। स्क्वायर एंड स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, cot plus cosec, cosec. Okay, this is one box. Now, from the box A and from the box B, I can take something common. I can see this thing common. ये और ये common है. I will take that out. From box A and from box B, I am taking cot theta plus cosec theta common. Okay. अब इस box में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस बॉक्स में क्या बचेगा, इस बॉक्स में से ये हट गया, ये बचेगा। तो इसमें बॉक्स में से बचा, नाउ वी आर सेट। वाई एम आई सेइंग कि नाउ वी आर सेट, और अब मैं आगे करने की कोशिश ही नहीं करूंगी कुछ, और अब मैं यहाँ रुक जाऊंगी फॉर द न्यूमरेटर। बता सकते हो रीजन? मैं हमेशा तब रुकती हूँ जब मुझे 2 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स मिल जाते हैं। मेरे को वो सिंपली फैक्टराइज हो जाता है, प्लस माइनसेस बीच बीच में टर्म्स हट जाती है। देयर आर नो टर्म्स हियर, देयर इज वन फैक्टर हियर, देयर इज वन फैक्टर हियर, एंड दिस इज व्हाट इज माय अल्टीमेट numerator, where I will stop for the numerator and I'll start solving the denominator now. I hope the solution for numerator is clear. ठीक है, हमने क्या क्या न्यूमरेटर में, सबसे पहले तो सबसे पहले क्या किया, साइन से डिवाइड किया क्योंकि हमें कोसेक कॉट चाहिए था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हमने डिफरेंट चीज, हमने 1 की जगह ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, उल्टी बात करी।
तीसरी चीज हमने फिर उल्टी बात की, कॉमन नहीं लिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पास पास ग्रुप किया। 3 अजीब चीजें करी हमने, 3 टर्म्स हैं तो 3 अजीब चीजें की। So we get this as the numerator. Okay. Now let's turn back to now let's start with the denominator. I'm saving the numerator here so that I get space for the solution of the numerator. I'm just saving it here. Numerator is equal to cot plus cosec 1 plus cot minus cosec. Denominator will be much simpler, don't worry. We are almost 80-90%, 90% through the question. ठीक है, 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है न्यूमेरेटर के सॉल्व होते, जरा सा बचा है डिनोमिनेटर। ऑलराइट, डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में था cos थीटा, आई थिंक प्लस साइन थीटा एंड -1. दिस वाज आवर डिनोमिनेटर। हमें क्या करना था? हमें सबसे पहले सब जगह साइन थीटा से डिवाइड करना था। कर देते हैं। राइट हैंड जैसी चीज आने लगी, राइट हैंड जैसी चीज आने लगी। अब हमें इसका कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर का और सिंप्लीफिकेशन बंद। हमें सिर्फ वहाँ पे, और न्यूमरेटर में हमें 3 स्टेप्स करने थे, डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 1 स्टेप करना है, डिवाइड बाय दैट साइन थीटा, द फर्स्ट स्टेप किया था। नाउ लेट्स कंबाइन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। कंबाइनिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब एक साथ रख देते हैं क्वेश्चन को, बेचारे को कब से अलग अलग तोड़ के रखा हुआ है, एग्जामिनर भी सोचेगा कि क्या हो रहा है ये। सो द LHS becomes, I'm writing the numerator, cot theta plus cosec theta and 1 plus cot theta minus cosec theta. And we'll keep the denominator now, which is cot theta plus 1 minus cosec theta. Okay, अब क्या करें? फैक्टर्स हैं, थैंक गॉड। यहाँ फैक्टर्स नहीं है, पर चलो देखते हैं, कम से कम इसको एक चीज़ तो मान सकते हैं हम। और अगर हम ध्यान से देखें, ये सिर्फ शफल्ड फॉर्म है इसका। देखो, इसको अगर मैं ज़रा सा शफल कर दूँ, इसको एक्सचेंज कर दूँ, 1 plus cot बना दूँ, so it is this only. So what happens is, very conveniently, this irritating 3-term thing gets cut, gets removed. Right? We were perturbed about the 3-term. 3 चीजें हैं, कैसे करें, कैसे 2 ही में परेशान हो जाते हैं, 2 ही में रैशनलाइज करो, ये करो वो करो, 3 का तो क्या ही करेंगे। इसलिए 3 को काटने की कोशिश करते हैं। और कैसे कोशिश करते हैं? बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स। ना बचा क्या? खत्म, आ गया RHS, खत्म हो गया। Again repeating the steps. I know I'm being too repetitive, but it is important for such type of questions. लोग इसको शुरू करते हैं, हमेशा आधे में छोड़ देते हैं। they feel so bad कि आता था, हमने किया हुआ है, फिर भी रह गया। First thing, look at the right hand side, find that denominator. उस चीज से, like we did with sin theta, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो। ठीक है? First ever time we are changing tan, cot, cosec, ये सबको हम sin cos में नहीं चेंज कर रहे हैं। पहली बार हम sin cos को cosec, cot, tan में चेंज करेंगे। ओके, उल्टी बात कर रहे हैं। हमने डिवाइड किया, उसको cosec, cot में चेंज किया। सेकेंड स्टेप हमने उल्टा क्या किया? हमने 1 की वैल्यू डाली, यहाँ से 1 की वैल्यू डाली, विच वॉज वेरी डिफरेंट। ठीक है? थर्ड चीज जो हमने डिफरेंट की, हमने कॉमन नहीं लिया, हमने डिफरेंट चीजें पास रखी। ठीक है? बस वहां पे काम खत्म हो गया। जब हमने डिफरेंट चीजें काम रखी, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आए, फिर डिनोमिनेटर के साथ छोटा सा काम किया,
और हमारा प्रूफ हो गया. I really hope this settles in your mind. I know it has a little learning, but please accept it. Thank you.